दिस इज़ मुन्ना राय। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए आप लोग को किस तरह से आवेदन करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, आप लोग किस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बेसिक नोटिफिकेशन देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फीस वगैरह कितना लगेगा। तो यहाँ से मेक श्योर आप लोग वीडियो को पूरा फॉलो करें। CISR होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो एक बार आप लोग नोटिफिकेशन भी जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक नोटिफिकेशन बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग का जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 30 दिसंबर तक है, तो उससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अप्लीकेशन फीस जनरल के लिए 1150 लगेगा, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 600 रुपये, SC ST PWD थर्ड जेंडर को 325 रुपये लगेंगे। आप लोग का एग्जाम 3 घंटे का होगा, 16 फरवरी से 28 फरवरी तक। एलिजिबल फॉर GRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD एडमिशन। अबाउट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, Junior Research Fellowship stipend. The stipend of GRF is selected through CSIR National Eligibility Test will be 37,000 per month for the first 2 years. In additional annual contingent grant of 20,000 is reimbursed directly to the fellow. On completion of 2 years as a GRF, and if the fellowship is registered for PhD, the fellowship will be upgraded to SRF net and the stipend will be increased to 42,000 per month for the third and subsequent year on the basis of fellowship. अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है आप लोग के लिए। The candidate who are pursuing their master degree or equivalent course or candidate who have appeared for their qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for the test. एंड यहाँ पे आप लोग को अगर जनरल कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स रहना चाहिए, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर को 50% मार्क्स है तो आप लोग एलिजिबल हैं। सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ NET रिजल्ट with required percentage of marks. Candidate with postgraduate diploma certificate awarded by Indian University Institute or foreign degree diploma certificate awarded by the foreign university institute in suit their own interest ascertain the equivalence of their diploma degree certificate with master degree or recognized Indian University with Association of Indian University AU Delhi. The candidate having passed 4-year 8-semester bachelor degree program should have minimum 75% marks in aggregate or equivalent grade on a point scale wherever grading system is followed. A relaxation of 5% marks of SC ST OBC non-creamy layer. The candidate qualifying in NET based on a 4-year undergraduate degree will be eligible for the award of the Junior Research Fellowship JRF and for the admission to the PhD. The candidate qualifying in NET based on a 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment as an assistant professor. Candidate who are pursuing 4-year 8-semester degree program and are last semester year may also apply for the candidate with 4-year bachelor degree program are allowed to appear a subject the list of subject and their codes for the CSIR UGC नेट दिसंबर 2024। अपर एज लिमिट जो रखी गई है GRF के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देर इज नो एज लिमिट, अपर एज लिमिट। एडमिशन टू PhD देर इज नो अपर एज लिमिट। यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले केमिकल साइंस के लिए है, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लैनेटरी साइंस का कोड भी दिया हुआ है। लाइफ साइंस मैथमेटिकल साइंस के लिए, फिजिकल साइंस के लिए। सो इतना ही था, मैंने बेसिक डिटेल आप लोग को बता दिया है। तो एक बार आप लोग भी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से आप लोग का बेसिक डिटेल था जो मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट ध्यान रखना है, रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस। आप लोग का जो फोटो रहेगा व्हाइट बैकग्राउंड में रहना चाहिए। 10 से 200 KB तक एंड सिग्नेचर का 4 से 30 KB तक आप लोग को अपलोड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को चेकबॉक्स आएगा, इस पे टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप लोग को चूज करना है आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइडेड माई कंसर्न टू आधार, आई हैव अ डिजी लॉकर, आई डोंट हैव अ डिजी लॉकर। तो यहाँ से आप लोग क्रिएट भी कर सकते हैं डिजी लॉकर। I have academic bank of credit ID. I don't have academic. I have an Indian passport and wish to create my login using passport. I have a PAN. तो यहाँ पे मैं आप लोग को पैन के थ्रू बता रहा हूँ, आप लोग आधार के थ्रू भी कर सकते हैं। देन पैन कार्ड का नंबर दीजिएगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ से आप लोग को आपका नाम दे देना है। देन यहाँ पे आप लोग अपना फादर नेम पुट करिएगा, यहाँ पे आप लोग अपना मदर नेम पुट करिएगा, यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस कन्फर्म करिएगा, अपना ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप लोग अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर दीजिएगा, कंफर्म करिएगा अपना मोबाइल नंबर।
अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेशनैलिटी आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप क्या है आप लोग का, तो पैन कार्ड दे सकते हैं या आधार कार्ड। देन आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देना है आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट आप लोग जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पे आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड दे देंगे। देन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करिएगा, ये सब ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी आप लोग अपना याद रख सकते हैं। तो कैरेक्टर के यूज़ करके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड सिंबल यूज़ करके आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्म करिएगा अपना पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर अपना पुट कर दीजिएगा। देन आप लोग को सिक्योरिटी पिन कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग का जो फिल किए थे डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, काइंडली वेरीफाई कर लेना है। तो जितना बॉक्स है आप लोग को सब पे वेरीफाई कर लेना है कि जो भी डिटेल मैंने फिल किया है सब सही है, कोई भी गलती नहीं है। तो एक बार 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 मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिए कहीं पे भी कोई गलती है तो। देन डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री पे क्लिक करना है। देन सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर एंड गेट OTP? यस। यहाँ पे आप लोग के ईमेल आईडी पे OTP गया होगा। OTP किसी का नहीं गया होगा तो थोड़ा सा वेट करिएगा, ये सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर किसी का नहीं OTP मिलता है। तो कैप्चा फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ से आप लोग को लॉग इन करना होगा। तो एप्लीकेशन नंबर आप लोग के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे भेज दिया गया होगा। पासवर्ड तो आप लोग क्रिएट किए थे। कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। देन यहाँ से आप लोग का डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग क्या करेगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप लोग का बेसिक डिटेल खुल के आएगा। यहाँ से आप लोग को क्या फिल करना है, आपका कैटेगरी चूज़ करना है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC, नॉन क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट। और यहाँ पे आप लोग का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं हुआ है तो आप लोग का नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है, आप लोग जस्ट कोई भी डिविजनल ऑफिस में जाके वहाँ से आप लोग सेंट्रल फॉर्मेट कर दीजिएगा। जाना है बस और आपको तुरंत ही करके दे देगा, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा आप लोग को। देन अगर आप लोग PWD कैंडिडेट है तो येस, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। आर यू डायबिटिक? नो। एनीवन इनकम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन आप लोग को सिलेक्ट करना है। अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख जो भी है यहाँ से आप लोग अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन कैप्चा फिल करके आई एग्री, देन सेव एंड नेक्स्ट। देन यहाँ से आप लोग का कॉन्टैक्ट डिटेल दिखेगा। यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा फिल कर देना है क्योंकि ऑलरेडी डिटेल फिल है तो हमें यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देन कैप्चा फिल करके आई एग्री, देन सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई ज्वाइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर डिग्री। अगर आप लोग मास्टर डिग्री करते हैं तो आप लोग तीनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, GRF असिस्टेंट और एक PhD के लिए। देन यहाँ से आपका स्टेटस क्या है, अगर आप लोग अपेयरिंग कैंडिडेट है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपेयरिंग को क्या करना है, पासिंग ईयर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर पास होंगे। यहाँ से आप लोग अपना कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग अदर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम दे दीजिएगा। ये मास्टर डिग्री वाले के लिए है। एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर्म इंडिया, देन क्वालिफाइंग कहाँ से आप लोग कर रहे हैं, देन बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस, जहाँ पे भी आप लोग का इंस्टीट्यूट है वहाँ का एड्रेस दीजिएगा विथ नेम, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस। देन आप लोग इंस्टीट्यूट पिन कोड दे दीजिएगा। अगर आप लोग PhD वेदर एडमिटेड इन PhD अगर है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। कैप्चा फिल करके आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। अगर आप लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर पास स्टेटस है तो पास करिएगा, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग करिएगा। पासिंग ईयर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर आप लोग पास आउट किए थे। देन यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम आप लोग सिलेक्ट करिएगा, B फार्मा, BTech, BE जो भी किए हैं यहाँ से आप लोग को मेंशन करना होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कहाँ से किए हैं। देन यहाँ से आप लोग को बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। देन इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस देना है, पिन कोड देना है, रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था या CGP, टोटल मार्क्स आप लोग का कितने का था एंड यहाँ पे आप लोग को कितना ऑब्टेंट हुआ है एंड परसेंटेज ऑटोमेटिक ही ले लेगा। PhD कर रहे हैं तो येस, नहीं तो नो। कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट। देन यहाँ से आप लोग को रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल, स्पेशलाइजेशन इफ एनी, वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ PG डिग्री, अगर है तो येस, नहीं तो नो। वेदर यू एन एक्स सर्विसमैन है तो येस, नहीं तो नो। MPhil मास्टर डिग्री कोर्स डिटेल अगर किए हैं तो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो सिंपली नो पे क्लिक करेगा। माइनॉरिटी डिटेल, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो। देन कैप्चा फिल करके आई एग्री, देन सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, GRF या PhD, अगर मास्टर किए होंगे तो आप लोग तीनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने UGC से किया है
तो यहाँ पे जीआरएफ एंड पीएचडी के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्वेश्चन पेपर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। माध्यम सिलेक्ट ऑप्ट फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल, लाइफ साइंस, तो यहाँ पे जो भी किए हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आप लोग को। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सिटी प्रीफरेंस देना है आप लोग अपना एग्ज़ाम कहाँ चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 4 प्रीफरेंस देना है, तो आप चारों प्रीफरेंस आप लोग अपना ही स्टेट में ले सकते हैं। देन यहाँ से फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन आप लोग को देना है, क्या करते हैं आप लोग के फादर, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ से मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना मदर का ऑक्यूपेशन देखें, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। देन क्वालिफिकेशन पुट करिएगा, कैप्चा फिल करके आई एग्री एंड देन 7 नेक्स्ट। यहाँ से आप लोग को फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज फोटो का साइज 10 से 200 के बी, सिग्नेचर का 4 से 30 के बी तक। ओके, देन 7 नेक्स्ट। देन यहाँ से आप लोग का पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप लोग को टोटल फी पेमेंट करना होगा 1150। इससे पहले आप लोग को ये फाइनल सबमिट है, अगर आप लोगों को चेक करना हो तो यहाँ से जाके कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले मोबाइल वेरीफाई करना है। आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर लेना है। देन यहाँ से आप लोग को फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से डिक्लेरेशन आएगा, सारे डिक्लेरेशन पे आप लोग को टिक करना है कि हमने सब सही फिल किया है, कोई भी गलती नहीं किया है। देन आप लोग को क्या करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ से आप लोग को पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग को पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप लोग पे नाउ पे क्लिक करिएगा। आप लोग पेमेंट कर सकते हैं एसबीआई, ईपे, आईसीआईसी, जैसे भी आप लोग को करना है। यहाँ से आप लोग आराम से पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग, एसबीआई अदर बैंकिंग, यूपीआई अदर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ से आप लोग यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली अगर क्यूआर कोड कर रहे हैं तो क्यूआर कोड पे जनरेट कर लीजिएगा क्यूआर कोड, इस पर क्लिक करके स्कैन करिएगा, आप लोग का पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।